Good morning, everyone, and thanks a lot for joining this call. I know Saturday mornings are really precious, family time and all, but definitely what is there in this call is to update you on the budget and definitely how multi-asset strategy is working with the DSP asset management company. So before I start the discussion, I'll introduce you to our guest. We have Prateek Nigudkar, who is part of DSP Mutual Fund. He is with DSP since 2020. So he's there with DSP since long, I think 2017, and he has been managing multiple strategies, which includes DSP Quant Fund and DSP Value Fund. Over and all, he has nearly around 1.5 decades of experience, and he has worked with organizations like Credits and all. And he has master's degree in quantitative finance from University of Washington. He holds a FRM certificate and also a CFA certificate from CFA Institute. Prateek, very good morning and thanks for joining in. Thanks for having me. Thank you. So Prateek, we have all investors of HDFC Securities who want to understand how you see the budget as an asset management company. The approaches are different for a retail investor and for an AMC. That's why we wanted you to quick share some light on how you see this budget. Though it's an interim one, but yes, definitely it shows some light on what the government is thinking. Over to you, Prateek. Sure. Thanks. Thanks, Abhishek and HDFC for having me. Like you said, the budget, it is still a vote on account, and it wasn't really a full-fledged budget, which we'll probably have in the month of June. Having said that, if I were to summarize the budget, one word that comes to mind is responsible. Fiscal responsible was something that was written all over, this budget. This certainly looks like a government that is very sure of coming back to power. A government that trusts the electorate, that it will be able to see through what the government is doing and not just rely on SOBs or freebies, which India and certainly something that we've seen in state elections that the people have come to expect. So this is certainly a government that trusts the electorate, that they will look at larger issues and not fall for SOFs or freebies. The fact that they've dialed back on a large part of the fiscal stimulus that we saw since COVID, that also speaks a lot about responsibility, fiscal prudence. It also helps you, in an era where every federal government around the world is trying to outspend the other. We are one of the few shining spots in the world where we're actually dialing down on fiscal fiscal spending. So that's a really good thing. Also on the taxes bit, I think there's every year there's some bit of jitteriness around this subject, and the fact that the taxes bit was not really even mentioned does tell you that they're looking for continuity. They're looking for something that does not surprise the markets, certainly in a negative way. What is also clear from this budget is that there is this negative fiscal impulse, which means the growth that was there in the last couple of years because of government stepping in and spending on behalf of the private sector, which is still reeling under the scars that had seen during COVID. That would certainly mean that the growth slowdown is quite visible, and a fall in expenditure would certainly, there'll be some segments, capital goods for instance would be one that will not see the kind of growth or at least the kind of spending that we've seen in the last couple of years. So that I would think is kind of a negative. However, the market still cheered, equity market still cheered the fact that the government is with this kind of budget is sort of
portraying or displaying confidence that is sort of sure of coming back. In terms of market implications, of course, the fact that the borrowing program will be shrunk meant that bonds rallied quite sharply. They rallied on the day of the budget. They also rallied yesterday quite hard. We as a fund house have been positioned very well to take advantage of this fall in yields. We were very long duration. So our fixed income desk has been uh, exactly positioned for this. Also, if you see, this kind of fiscal prudence certainly does call for an upgrade in terms of sovereign rating as well, and that is something the markets also have an eye on. So if we do get a sovereign upgrade sometime this year, that would lead an additional leg in terms of bond markets rallying. Also, if you see globally, also inflation has been falling, barring a disruption in the Red Sea. If that were to sort of spread to other geographies, I think interest rates and inflation and interest rates are probably going to keep coming down for a majority of this year. At least that's what U.S. bond yields and elsewhere are pointing to. So again, that is another reason why one should look to go long on bonds and long duration bonds at that. Uh, what also I think is kind of negative from an equity standpoint is that, like I said, capex, the kind of impulse that we had last couple of years, that will not be there. Some bit of reaction to that you've already seen with railways, in particular the railway stocks, which were doing quite well up until the budget, have started to peter out in terms of the kind of rally that they've seen. So it's a mixed bag. I think it's more fiscal prudence, more fiscal consolidation, good for bonds, great for bonds actually, not so much for equities. Uh, and the whole premise on which this budget is based on is that the mantle, the capex mantle will probably shift from, at least that's what the government hopes, the capex mantle will shift from the government to the private sector. Now, whether or not that will happen is something that remains to be seen. If I were to look at other places, I think the indications are that it's going to be a tough year economy-wise globally. Uh, a fairly high number of leading indicators, macro indicators, which do tell you that you could be looking at a fairly protracted and a sharp slowdown in economic activity, at least globally. Uh, and and in these kind of circumstances, it's sort of difficult for India to have that large a gap in terms of growth to the rest of the world. So I think we will see some bit of slowdown here as well. Whether that translates into poor equity returns or not, we'll have to see, because the flows have been very buoyant in India. Uh, but on the margins, I'd certainly say that this budget is slightly negative for equities, and especially the capex plays uh, that have done very well over the last 1.5 years. So that's how I'll kind of summarize the budget uh, right That's now. very well. In fact, one big shoot which you just shared, I'll tell to our investors, or probably use try to explain it basically in Hindi. To all the customers, आप लोग जो भी budget से expectations थी as per the government, they have not done much changes. ज़्यादा change नहीं किया है government ने इस budget में. और उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर कोई बात नहीं करी है. एक अच्छी बात जो प्रतीक ने बताई कि जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है उससे हमारी रेटिंग सुधर सकती है. करेंटली इंडिया की रेटिंग फिच के हिसाब से BBB- है. और जब भी फिर रेटिंग इम्प्रूव होती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंट्रीज में आते हैं. सो विद दैट थॉट आई थिंक दिस बजट हैज डन वेल. ऑब्वियसली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को खर्चा करना है वो उन्होंने अच्छा नंबर प्लान किया हुआ है. 1 लाख I think 1,11,000 crores. That's the number they are planning.
and there's not too much to get into the budget because it was an interim budget. We may get something really surprising. आपको शायद जुलाई वाले बजट में कुछ और भी अच्छा मिल सकता है इस गवर्नमेंट से, but that is dependent on the elections. So elections के result पे dependent है. But for all investors, सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि अगर आपको इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न चेज करना है तो बजट इज नॉट द इवेंट टू लुक एट. यू हैव टू लुक एट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी. कंपनी अगर पैसा कमा रही है, उनकी अर्निंग्स बढ़ रही है, तो स्टॉक मार्केट का प्राइस वो रिफ्लेक्ट करेगा. ये आप 10 साल 20 साल 30 साल का भी चार्ट उठा के देखेंगे तो जैसे जैसे कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है, आपका स्टॉक प्राइस उस हिसाब से बढ़ता है. ऑब्वियसली शॉर्ट रन में छोटे टाइम के लिए दिस डजंट गोज वेल, बट लॉन्ग टर्म में एज ऑल द इन्वेस्टर्स सबको यही सलाह देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए ऑन म्यूचुअल फंड्स. सो उस हिसाब से ये आपका प्रॉब्लम, ये कभी प्रॉब्लम नहीं आता कि earnings are not reflecting in the prices. Correct. And Indian market is very I'll not say super efficient, but it's very well efficient to time that. And so thanks Prateek. On the budget, can you update what is this we have some investors from who has invested in multi asset, who wants to invest in multi asset, or probably who have tasted multi asset. So all investors के लिए what is the benefit of a multi asset strategy, looking at अभी जो market चल रहा है where everything is has been rosier, I should say. बताइए प्रतीक. बिल्कुल. तो मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, visible है जी. ओके, थैंक यू. हाँ, तो दिस इज वन स्ट्रेटजी जो हम आई थिंक लेट सितंबर, almost 27-28 सितंबर को is something that we launched this strategy. और हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल था कि ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप अपना सारा सेविंग, सारा पैसा लगा सकते हैं, राइट? सो अगर आप कोई टिपिकल फाइनेंशियल सेविंग्स अगर खुद की देखें तो थोड़ा पार्ट आपका थोड़ा रियल एस्टेट में रहता है, किसी का कोई गोल्ड की तरफ किसी ज्यादा रुझान रहता है, कोई थोड़ा बहुत इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, किसी को फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को टैक्स फ्री बॉन्ड्स अच्छा लगता है. तो ये एक ऐसा फंड है जो कि सभी की मोटा मोटी सभी की जरूरतें पूरी करता है. और एक ऐसा फंड है जिसमें फिर आपको 50 जगह देखने की जरूरत नहीं कि थोड़ा मिड कैप में लगा दें, थोड़ा स्मॉल कैप में लगा दें. ये एक ऐसा फंड है जिसमें एटलीस्ट मेरा खुद की जो मेरी सेविंग है, जो भी सैलरी से मुझे मिलती है, वो अब मैं इंक्रीमेंटली एक ही फंड में डालूंगा जो कि ये डीएसपी मल्टी एसेट फंड है. इसमें मुझे टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे 50 और चीजें देखने की जरूरत नहीं. तो पहले तो बात करते हैं कि ये मल्टी एसेट, ये हम बोलते हैं कि इट इज मैजिक. तो ये क्यों मैजिक है, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें आप शायद आप में से काफी लोग लंच पैक करके जाते होंगे, दैट इज 99% प्योर एल्यूमिनियम. सी में अगर आप थोड़े से चेंज कर दीजिए, 5% मैग्नीशियम, 5% जिंक, थोड़ा सा कॉपर मिला दीजिए, तो इट चेंजेस इट्स कैरेक्टर सो मच कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एयरलाइन पार्ट. कि आपका जो लंच का डब्बा जिसमें पैक होता है, 95% एलिमेंट्स वही रहेंगे, एयरक्राफ्ट पार्ट्स में भी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट? पुराने जमाने में भी अगर जो लोग जिसे एल्केमिस्ट बोलते थे कि वो नॉर्मल चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे, ऐसा बोलते थे. हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं था, इट इज जस्ट बेसिक केमिस्ट्री, बट जो रिजल्ट आते हैं वो इतने ड्रामेटिक होते हैं कि वो कोई जादू से कम नहीं होते. सेम चीज एल्यूमिनियम फॉइल में, हमने एक सेम फॉइल उठा के एरोप्लेन पार्ट बना दिया जो मैक्सिमम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह को झेल सकता है. सो दैट आई थिंक इज द एसेंस ऑफ मल्टी एसिड कि इसमें आप थोड़ा सा कुछ और मिक्स कर दीजिए जिससे बहुत फर्क पड़ता है. क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं डाइवर्सिफाइड हूँ तो मुझे मल्टी एसिड की जरूरत नहीं. हमारे पास दो एग्जाम्पल है, दो बड़े पिछले 15 साल में जो क्राइसिस आई, कोविड और फाइनेंशियल क्राइसिस. इसमें आप किसी भी तरह का डाइवर्सिफिकेशन लगा लीजिए, या तो आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, उस तरह का डाइवर्सिफिकेशन, या आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं, वैल्यू स्टॉक्स भी हैं, कैसे भी स्टॉक्स हैं, मोमेंटम स्टॉक्स भी हैं, आजकल वो भी चल रहा है. हर तरह से आपका नुकसान
मोटा मोटी 60% होता 2008 में, और 38% के आसपास आपका नुकसान होता पीक टू ट्रफ कोविड में, चाहे आप स्मॉल कैप में हो, चाहे आप मिड कैप में हो, चाहे लार्ज कैप में। सो कैटेगरी वाइज अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो दैट डजंट कट इट, उससे फर्क नहीं पड़ता। और लोग बात करते हैं कि ठीक है चलो मेरा सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन है, हमारे पास डेटा है सेक्टर्स का भी कि कोई सेक्टर 65% गिरा, कोई सेक्टर 55% गिरा पीक टू ट्रफ, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 लीमन क्राइसिस के टाइम पे। 2020 में भी ऐसा ही था कि शायद थोड़ा सा फार्मा और आईटी कम गिरा, बट वहां पे भी 25% से ज्यादा लॉस तो आपका हुआ ही। करेक्ट। अगर आप बोले कि ये सब तो आप इंडेक्स लेवल का डेटा दिखा रहे हैं, मुझे आप एक्टिव फंड्स का दिखाइए, तो मेरे पास ये चार्ट है राइट साइड में, यहाँ पे एक्टिव फंड्स ने भी एक्चुअली उतना ही बुरा किया है, इन सम केसेस एक्चुअली वर्स देन अ निफ्टी सिंपल ईटीएफ। करेक्ट। सो जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, विद इन एक एसेट क्लास आप कभी डाइवर्सिफाइड हो ही नहीं सकते, चाहे आप मिड कैप ले लें, स्मॉल कैप ले लें, 50 तरह के फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, फैक्टर फंड्स ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही अगर एसेट क्लास है आपके पास आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको मदद नहीं करेगा। असली डाइवर्सिफिकेशन कैसे आता है? अलग तरह के एसेट क्लास यूज करके। ठीक है भाई, आपके पास इक्विटीज है, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, जो भी है, डेट हो, गोल्ड हो, और एक और एसेट क्लास जो हमने इंट्रोड्यूस की है, इंटरनेशनल इक्विटीज। ये भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बार अगर आप याद रख रहे हैं कि देयर आर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन इंडिया, अगर मैं आपको 2016 में लेके जाऊं जहां पे नोटबंदी हुई थी, करेक्ट, दैट वाज एन इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इंडियन मार्केट्स 5-10% करेक्ट हुए, 10% करेक्ट हुए, कुछ और एफएमसीजी स्टॉक्स और करेक्ट हुए कंजम्पशन बास्केट में, बट दिस वाज एन इंडिया स्पेसिफिक इवेंट, इसका कोई बाहर से लेना देना नहीं है। करेक्ट। तो अगर आपके पास एक पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो व्हिच इज इन्वेस्टेड आउटसाइड, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। आपको अपने पोर्टफोलियो में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टेड है जिनका कोई इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है। 2013 में भी अगर आप देखें, एक एक ग्रुप बन गया था इंडिया का। आजकल तो इंडिया बहुत ऊंचाइयों पे है, बट 2013 में जब पिछली सरकार थी, तब काफी प्रॉब्लम में थी इंडियन इकोनॉमी। इंडिया एक फ्रैजाइल 5 करके एक ग्रुप का पार्ट थी, जहाँ पे जिसमें कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया थे, कंट्रीज लाइक टर्की थे, which were on the brink of major economic catastrophe, if I would say। जो रुपी था, जो आपका 55 से लेके ऑलमोस्ट 70 पहुंच गया था, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, हमारे बैंक्स में एनपीएस थे बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। बट इसके टाइम पे हो क्या रहा था कि हमारा रुपी गिर रहा था, पर अगर आपका एक पार्ट है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, जैसे अगर रुपी अगर 10% गिरता है, तो आपका जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है, या जो गोल्ड है, या इंटरनेशनल इक्विटीज है, वो अपने आप रुपी टर्म्स में आपको रिटर्न दे देगा। करेक्ट। सो ऐसे तरह के इंस्टेंसेस में भी 2013-2016 के इंस्टेंसेस, जहां इक्विटी मार्केट सिर्फ इंडिया में इफेक्ट करते हैं, आपका अगर पैसा थोड़ा सा पार्ट ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड आउटसाइड, इट रियली हेल्प्स, क्योंकि आपको रुपी डिप्रिसिएशन का भी फायदा होता है, और प्लस द फैक्ट कि वहां पे इफेक्टेड नहीं है, वो भी फर्क पड़ता है। बात फिर से आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे, कि अगर उन्हीं दो फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें, 2008 की मंदी और 2020 कोविड का टाइम, यहाँ पे मार्केट सेल ऑफ हुआ था, इंस्टेड ऑफ इक्विटी अगर आपके पास एक एसेट एलोकेशन मिक्स होता, आपके पास कोई डीएसपी का फंड हटा भी दीजिए, कोई और ऐसी नॉर्मल डाइवर्सिफिकेशन अगर आपके पास होता, जिसमें 50% इक्विटी होता, 50% फिक्स्ड इनकम होता, तो 25% गोल्ड होता। करेक्ट। ऐसा मिक्स मात्र 27% गिरा था 2008 की मंदी में। ऐसा मिक्स में 20% से भी कम फॉल आया था कोविड के क्राइसिस में। जब आपका पोर्टफोलियो 40% घट जाता है, 60% घट जाता है ना, तो लोग इक्विटी मार्केट 10-10 साल के लिए छोड़ देते हैं। जब अगर आपका आउटकम इतना बेहतर है, जिसमें आप 20%, 30% अपना ड्रॉडाउन अगर बचा सकें, तो दैट इज इमेंसली पावरफुल। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि बॉटम ऑफ द मार्केट अगर आप निफ्टी देखें तो 7,500 गया था, राइट, आज है ऑलमोस्ट 22,000 पे, राइट, तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ से बढ़ गया। तो 1 रुपया अगर आपने जो बचाया है फॉलिंग मार्केट में,
Now that is worth almost 3 rupees in the gaining market, in a bull market, right? तो हर एक रुपया अगर आप जो बेयर मार्केट में नीचे का बचाते हैं, that is worth its weight in gold. बुल मार्केट में उसका बहुत फायदा पड़ता है. इट इज अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड फैक्ट, बट मैथमेटिकली इट इज प्रूवन कि अगर आप ऐसे फंड्स पे निवेश करें या ऐसी स्ट्रेटजीज में निवेश करें जहां पे जो बेयर मार्केट में आपका थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बचा लें, थोड़ा सा फॉल बचा लें, ओवर द लॉन्ग टर्म जब मार्केट्स वापस रिकवर करते हैं, एक्चुअली दीज आर द स्ट्रेटजीज दैट डू इट. सो अगर आप बुल मार्केट में अंडर परफॉर्म भी करें क्योंकि आपके पास सिर्फ 50% इक्विटी है, बट क्योंकि आपने वो 1 रुपया नीचे बचाया है, बुल मार्केट में वो 3 रुपए के बराबर है, राइट? तो बुल मार्केट में आप अंडर परफॉर्म भी करें तब भी लॉन्ग टर्म में पूरी साइकिल में आपका ज्यादा पैसा बनेगा बनस्पत जो वो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड है, प्लस आपको वॉलिटिलिटी अलग झेलना पड़ेगी, करेक्ट? सो ये हमने और एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे अदर कंट्रीज जहाँ पे मल्टी एसेट वर्क्स इक्वली वेल. अगर आप क्राइसिस हिट इकोनॉमीज ले, पाकिस्तान ले, टर्की, जापान, इस तरह की इकोनॉमीज ले जहाँ पे या तो ग्रोथ प्रॉब्लम है या इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस है, इन तरह की इकोनॉमीज में भी एक मल्टी एसेट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क हैज डन वेरी वेल, राइट? सो जापान में ग्रोथ इशू है कि 20 साल से वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है. Equity markets have gone nowhere. Recently they've done well, but over the large course of last 30 years कोई फर्क नहीं पड़ा है. ग्रीस और टर्की में ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है. ग्रीस में ऑलमोस्ट वो बैंक्रप्सी के कगार पे थे 2010 में. पाकिस्तान हैज बीन हिट बाय सेवरल पॉलिटिकल अपहीवल्स. हर तरह की कंट्रीज में जहाँ पे प्रॉब्लम है, multi-asset kind of framework actually does very well. So if something untoward were to happen in India, जैसे ये सरकार चली जाती है, कोई खिचड़ी सरकार आ जाती, उस तरह की unlikely scenario में भी a multi-asset framework actually does very well. अगर हम बात करें स्टेबल और ग्रोइंग इकोनॉमीज की, जैसे कि यूएस हो गया या इंडिया हो गया, इन तरह की इकोनॉमीज में जहाँ पे एक्चुअली प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, इन तरह की इकोनॉमीज में भी अगर आप देखें तो मल्टी एसेट मिक्स, इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड डेट एक्चुअली डज बेटर और ऑलमोस्ट एज गुड एज अ कंप्लीटली इक्विटी पोर्टफोलियो. ये क्यों होता है? जैसे हम बोलते हैं ना मैजिक, 1+1 2 नहीं होता है. मल्टी एसेट में 1+1 2 से ज्यादा होता है, कभी 3 हो सकता है, क्योंकि आप जब गिरते हुए मार्केट में आपका डेट आपको बचाएगा, उसके बाद जब मार्केट सस्ता हो जाएगा वो डेट आप डिप्लॉय करेंगे इक्विटी में. सो इक्विटी आप एलोकेशन अपना बढ़ा देंगे, तो आपने मंदी के मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बचाया और तेजी के मार्केट में आप ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे. ओवर द फुल साइकिल जो आपके रिटर्न्स रहेंगे, दोज आर नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्लीट इक्विटी प्रोडक्ट, बट आपको जो जर्नी रहेगी आपकी वो बहुत स्मूथ रहेगी. और ये मैंने खुद देखा है, मेरी फैमिली मेंबर्स का भी देखा है. जब गिरते हुए मार्केट में द फर्स्ट इंस्टेंसेस की यार ये खत्म हो गया है, अब ये तो सट्टा बाजार है, ये है, इसको हटाओ, मैं तो फिक्स्ड इनकम में डाल, वहीं पे सबसे प्रॉब्लम होती है कि उसी टाइम पे जहाँ पे आपको इक्विटी मार्केट में और पैसा लगाना चाहिए, आप मोस्टली मिस कर जाते हैं वो रैली. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्वेस्टेड इन in a strategy जो मंदी के मार्केट में बचाए और तेजी के मार्केट में आपको पूरा पार्टिसिपेशन दे और मोस्ट पार्टिसिपेशन दे. ये हमने स्लाइड डाली थी कि भाई इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो बोलते हैं इंडिया का डेकेड है, इंडिया के 2 अगले डेकेड हैं, इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी दैट इज डूइंग वेरी वेल. ऑल ऑफ दैट इज ट्रू, हम भी यही मानते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर साल रिटर्न आए. पिछले 2 साल से आपको बढ़िया रिटर्न आ रहे. 22 में नहीं है, 21 में बहुत है, 20 में अच्छे रिटर्न थे, 21 में अच्छे रिटर्न थे, 22 में इवन स्टीवन था, 23 में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले. तो ओवर द लॉन्ग टर्म हम सोचते हैं, जो चार्ट आपके लेफ्ट पे है, कि ओवर द लॉन्ग टर्म जो अपना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रहता है, रफली उतना पैसा हमारा इक्विटी मार्केट्स में भी बन जाएगा. तो अगर हम 5-6% ये माने अपना रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके ऊपर 4-5% अगर हम माने हमारा इन्फ्लेशन, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12-13% के आसपास आता है.
which is okay, which is what an equity investor in the long term should expect, correct? बट इसका ये मतलब नहीं है कि 13% आपको हर साल मिले. हो सकता है इस साल जो पिछला साल था उसमें आपको इस साल का भी रिटर्न आ गया, या हो सकता है इस साल आ जाए तो अगला साल बहुत खराब हो जाए. यू नेवर नो, राइट? सो 1992 से लेके 2002 का एक 9 साल का एक पीरियड था, जब while economy did okay, but India was on the midst of a lot of upheaval. पहले आपका हर्षद मेहता स्कैम हुआ, फिर आपकी 1996 से लेके 1999 तक 2-4 खिचड़ी गवर्नमेंट आई, पॉलिटिकल अपहीवल था, व्हाट ऑल ऑफ दैट. फिर बीच में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया जिसके कारण हमारा और डीरेटिंग हुआ. तो ये 9 साल का एक पीरियड था जब while the economy was doing okay, wasn't doing all that great, but it was still growing. बट ये 9 साल के पीरियड में निफ्टी का रिटर्न था मात्र 0.5%, करेक्ट? अगर आप सोचें इस मार्केट में आपको फिक्स्ड इनकम दे रहा है 6%, 7%, और आपको इक्विटी मार्केट ने 9 साल के स्ट्रेच में 0 रिटर्न दिया है, तो आपका इक्विटी मार्केट के प्रति जो अभी जो रुझान है, अभी जो झुकाव है, वो बहुत अलग होता है, करेक्ट? तो देयर विल बी पीरियड्स वेयर इक्विटी डज नॉट डू वेल. सिमिलर इज द केस कि 2008 की मंदी के बाद 2013 तक ऑलमोस्ट कोई रिटर्न नहीं था मार्केट में, करेक्ट? 6-7 साल का जो पीरियड था जब मार्केट में ऑलमोस्ट 0 रिटर्न था, इवन दो इंडिया हैड रिकवर्ड, द मार्केट्स हैड, द इकोनॉमी हैड रिकवर्ड, बट मार्केट रिटर्न 2013 के बाद ही है, राइट? तो किसे पता कि ऐसा पीरियड में हम आगे नहीं घुस रहे हैं. हो सकता है हम उस पीरियड में आ रहे हैं, या हो सकता है कि अब गवर्नमेंट ने भी केपेक्स काट दिया, हो सकता है इक्विटी मार्केट्स मे नॉट बी सो गुड फ्रॉम हियर, स्पेशली इफ यू सी वैल्यूएशन वाइज. अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, जब वैल्यूएशन बहुत हाई होते हैं जैसे कि अभी हैं, उस पॉइंट पे तो इट मेक्स इवन मोर सेंस फॉर यू टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम इक्विटीज इनटू अ स्ट्रेटेजी लाइक दिस. देखिए, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको 50-60% इसमें इक्विटी एक्सपोजर वैसे ही मिल रहा है, और अगर मार्केट नीचे गया खुदा ना खास्ता, तो आपको बहुत सारा डाउनसाइड है, आपका डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो रहा है, आपको फिर भी सम लेवल ऑफ रिटर्न मिल रहा है जो इक्विटी में नहीं मिल रहा है, और आपकी जो जर्नी है, जो फाइनल जर्नी है, सबके एक गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं. टू रीच योर गोल विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. उसके लिए एक मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी बहुत बहुत जरूरी है. अगेन, ये हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएं, मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी, जिसमें गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी, इंडियन इक्विटी और डेट हो, फिक्स्ड इनकम हो, और आपको, अगर आप भगवान है, फॉर इंस्टेंस आपको फुल फोरसाइट है कि भाई इस साल के शुरुआत में मुझे पता है कि ये एसेट क्लास सबसे अच्छा करने वाला है, करेक्ट? तो आप सारा 100 रुपए अपना पूरा पैसा उसी अगर एसेट क्लास में डाल दें, तो इस तरह के भगवान का रिटर्न अगर आप देखें तो भी वो 29% बनेगा. सपोज आपको कोई फोरसाइट नहीं है, आपको है कि थोड़ा बहुत है कि मेरे को ये लगता है कि 50% एसेट में अपना बेस्ट क्लास में लगा दूं, बेस्ट एसेट क्लास में लगा दूं, और बचा हुआ दूसरी जगह लगा दूं. इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो हाइपोथेटिकल स्ट्रैटेजी में अबाउट 19% बनेगा. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि अगर आपको कोई फोरसाइट नहीं है कि भाई मुझे नहीं पता कि गोल्ड अच्छा करेगा, मुझे ये नहीं पता कि इंटरनेशनल अच्छा करेगा या डोमेस्टिक अच्छा करेगा, अगर मैं 4 पार्ट्स में हर साल अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर दूं, उसमें जो मेरा आउटकम है वो ऑलमोस्ट मेरा इक्विटी जितना आउटकम अच्छा रहेगा. और उसमें होगा क्या कि मेरे वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स बहुत कम रहेंगे. अगेन, द आइडिया इज कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. अगर इक्वल, अगर आप एसेट क्लास भी अगर करें 25% ईच इन ईच एसेट क्लास, उसमें भी आपका आउटकम बहुत अच्छा आता है. ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रैटेजी इससे ज्यादा इवॉल्व है, सो वी विल ट्राई एंड डू बेटर देन दिस, बट द आइडिया इज कि even without any foresight you will do better or almost as good as a complete equity product. और हमारी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी का फिलहाल ये आउटकम था, where a multi asset strategy का return was x of fees and all of that. The returns were actually almost at par with the domestic equity returns, which have been stellar, by the way.
but reducing the volatility of returns, reducing heartburn, heartache by a lot, right? Same kind of returns with less tension. That is what we are looking for, correct? Drawdowns are kept in check. जब जो मैंने आपको पहले बात करी, जब भी मंदी होती है तब this asset class does very well. टैक्सेशन पे भी अगेन बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई ये डेट टैक्सेशन विद इंडेक्सेशन वाला क्यों है आपका फंड, विच वी ट्राई टू एक्सप्लेन कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इक्विटी टैक्सेशन वाला भी है वो आर्बिट्राज कंपोनेंट चलाता है, और आर्बिट्राज कंपोनेंट के जो रिटर्न्स है दोस हैव बीन सब ऑप्टिमल इफ यू वर टू कंपेयर इट विद अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट. तो ओवर टाइम अगर आपका होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो हम चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 साल और उससे ज्यादा हो, then actually there's very little to choose between equity taxation और debt taxation. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. In fact you give up on the suboptimal arbitrage returns as well. किन लोगों के लिए फंड ये suitable है? I think जैसा मैंने बोला, I would call myself as a seasoned investor, but मेरे लिए भी ये फंड पूरी तरह से suitable है. जैसा कि मैंने बताया, हर मेरा इंक्रीमेंटल पैसा, जो हर मेरी इंक्रीमेंटल सेविंग होगी हर महीने, वो मैं इसी फंड में डालूंगा अब आगे से, बिकॉज आई डोंट वांट टू रियली. कोविड जैसा कुछ हो गया कि जब मुझे लगता है कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, तब मैं शायद पूरा इक्विटी प्रोडक्ट देखूं. उसके अलावा आई थिंक दिस सर्व्स द पर्पस फॉर मोस्ट पीपल. इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग आई थिंक मैं ये आपका जो बैफ या डैफ जैसे कहते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी, उससे थोड़ा सा ऊपर मानूंगा, रफली ऑन एवरेज टू अ एग्रेसिव हाइब्रिड. इसे मैं कह सकता हूँ एग्रेसिव हाइब्रिड स्ट्रैटेजी की रिस्क के आसपास रहेगा ये प्रोडक्ट. ये सभी के लिए सूटेबल है. जैसा मैंने बोला, सीजन इन्वेस्टर के लिए जिसको एक फेवरेबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर चाहिए. अगर मैं इंडिविजुअली करूं कि भाई मैं गोल्ड ये लूं या इक्विटी बेचूं, म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट व्हीकल, राइट? मेरे को अगर मैं किसी सिक्योरिटी पे गेन अगर मुझे दिखता है, मैं बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, राइट? सो इट इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट व्हीकल वेयर मेरे को सारे तरह के एसेट क्लास मिलते हैं विद द बेनिफिट ऑफ टैक्सेस. रिटेल इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की भाई मार्केट 22,000 पे है, मुझे वैल्यूएशंस का डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यार ये सारे स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते थे वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गए, क्या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिसमें फिर भी अगर यहाँ से अगर अपसाइड है तो मुझे मिले, अगर डाउनसाइड इक्विटी मार्केट में मंदी का दौर आ जाता है तो क्या मैं अपना डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं फिर भी डिसेंट रिटर्न्स 3 साल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है. रिटायरीज के लिए बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट है कि अगर आप अपना को जो भी पीएफ का पैसा है, कोई भी आपकी ग्रेजुटी का पैसा लमसम मिला हो, उसको अगर आप निवेश करें और फिर एसडब्ल्यूपी रूट के थ्रू आप मंथली अपना फंडिंग करें उसके साथ, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. बात करते हैं हमारे खुद के. आई कैन मे बी पॉज हियर, अगर आप किसी को क्वेश्चंस है तो मैं रुक भी सकता हूँ, या फिर मैं पूरी स्ट्रैटेजी भी बता सकता हूँ. अभिषेक आप बताइए. Prateek, I think we will just quickly clear. I think there are a lot of questions which are coming up. Sure. First of all, I will rebrief everybody. So strategy बहुत simple है जो प्रतीक ने बताई कि the fund manager has options to invest. उनके पास कई पॉकेट्स है इन्वेस्ट करने की, विच इज इंडियन इक्विटीज जहाँ पे वो 50% के आसपास इन्वेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल इक्विटीज, डेट और गोल्ड. ये चारों एसेट क्लास जैसा बताया कि एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, कभी कोई बेटर रिटर्न देता है, कभी कोई दूसरा बेटर रिटर्न देता है. तो जब हम स्प्रेड करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इन चारों एसेट क्लासेस में, जो इनका मिश्रण है वो उसका परफॉर्मेंस मोर और लेस, जो अगर हम इंडिविजुअली एक एक को देखेंगे तो कई बार उससे बेटर होता है. ओनली देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जब एक ही एसेट क्लास बहुत तूफान की तरह चल रहा है, जैसे ओनली इक्विटी इज वर्किंग वेरी वेल, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है. बट आप सब जानते हैं कि अभी वो सिनेरियो नहीं है कि वी हैव कम आउट फ्रॉम अ फियास्को जब बहुत हमारा मार्केट बहुत गिरा हुआ है और अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तेजी दिख रही है.
वो सिनेरियो अभी तो नहीं है, ना इंडिया में भी नहीं है और यूएस और ग्लोबल मार्केट्स में भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। डेट और इक्विटी, सॉरी, डेट और गोल्ड अभी भी अच्छे लग रहे हैं, उसके ऊपर वी विल आस्क प्रतीक उनका क्या व्यू है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है इस मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी का। और यूनिक बात ये है डीएसपी मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी की कि इनकी मल्टी स्ट्रैटेजी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी है, कि दे आर मेनी मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। This is one more addition which DSP as a house brings to our investors. Now, प्रतीक, आप अभी पहले आप ये बताइए कि इक्विटी मार्केट का तो आपने बताया कि परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, थोड़ा आप गोल्ड और डेट मार्केट के ऊपर बताएं बिफोर आई टेक ऑन सम मोर क्वेश्चंस। इनफैक्ट रीट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस है, तो आप पहले बताएं, उसके बाद फिर बताइए। सो इक्विटी मार्केट्स में जैसे कि मैंने बोला कि वैल्यूएशंस काफी हाई हैं, यहाँ से उस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना शायद इट्स गोना बी अ स्ट्रेच यहाँ से। तो आप यहाँ से मॉडरेट हाई सिंगल डिजिट रिटर्न्स की उम्मीद लगा सकते हैं, एटलीस्ट जब तक वैल्यूएशंस थोड़े कूल ऑफ ना हो जाए, अर्निंग्स गेट अ चांस टू कैच अप वो द मीडियम टर्म। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि कल ही से मंदी चालू हो जाएगी, बट जब भी वैल्यूएशन स्टार्टिंग पॉइंट अगर हाई रहता है तो वहां से हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी एक्चुअली क्वाइट मॉडरेट। बात करते हैं डेट की। डेट का जैसे मैंने बताया, जिस तरह का बजट था, द बॉन्ड मार्केट्स हैव रैलीड वेरी शार्पली। अगर गवर्नमेंट बोरिंग नहीं करेगा तो दैट रिमूव्स अ लॉट ऑफ सप्लाई फ्रॉम द मार्केट, debt issuance, which means कि the government which was earlier trying to crowd out कि अगर 100 रुपया है इन्वेस्टर्स के पास, डेट इन्वेस्टर्स के पास, उसमें से अगर 80 या 70 पहले गवर्नमेंट बोरिंग कर लेती थी, तो जो बचा हुआ जो मार्जिनल बोरोअर था, जो प्राइवेट सेक्टर, उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता। अगर आप गवर्नमेंट बोरिंग श्रिंक कर जाते हैं तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है कि अगर सप्लाई अगर आपने कम कर दी और डिमांड उतनी है, then the rates have to settle lower, correct, which means bond markets are expected to do well. जैसा कि मैंने बताया, मोदी सरकार ने काफी फिस्कल प्रूडेंस दिखाया है, काफी फिस्कली अपने आप को सॉलिड रखा है। ओवर स्पेंड करने की जो स्पेशली इलेक्शन ईयर में जो इच्छा रहती है जनरली काफी सारे सरकारों की वोट्स बटोरने के लिए, they have stayed away from it, which is a good thing. And that is also something the bond markets have cheered. अगर आप गवर्नर स्टांस की देखें, अगेन most economists now expect एक या दो रेट कट एटलीस्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। ग्लोबली अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, वो वहां पे भी the expectations where US is expected to have a round of rate cuts starting June this year. तो अगर 2 या 3 रेट कट आते हैं ग्लोबली भी, तो that will help bond markets because the spread, then it becomes easier for the RBI governor also to sort of cut rates. Another thing that interest rates are dependent on is commodity prices. अगर आप देखें height of the Russian Ukraine crisis में almost 130 तक कच्चे तेल की कीमत चली गई थी। अगर आप कल का रेट देखें, it is actually closer to $75 and probably expected to fall even further. तो बहुत सारे जो commodity pressures थे, those are no longer there. The reasons why interest rates went up are no longer there. So अगर if we are in a regime where interest rates are expected to fall, the corollary to that is कि bond markets should do very well. अगर हम अपने fixed income products की बात करें, वहाँ पे हमने सब जगह duration add किया है। अगर हम खुद के मल्टी एसेट फंड की बात करें, वहां पे भी जो फिक्स्ड इनकम एलिमेंट है, वहां पे हमने ड्यूरेशन कॉल्स लिए हैं, which have of course worked out over the last couple of days. We think there is a lot of legs to this bond rally which we think has just started. तो अभी bond rally जो है वो अभी start हुआ। So again it gives balance to your portfolio. प्रतीक, जस्ट मैं अपने इन्वेस्टर्स को फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रतीक जो कह रहे हैं कि हम उन्होंने पहली बात डेट मार्केट में वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 3 से 6 महीने में एक आध रेट कट हो सकता है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं।
इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है जो महंगे वाले बॉन्ड्स है वो, और मतलब हाई इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स है वो महंगे बिकेंगे मार्केट में। और उसी के हिसाब से वो बता रहे हैं, जैसे कि फंड ने अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबा बॉन्ड लिया है जिस जो 10 साल तक या 15 साल तक मान लीजिए 7.5% देने वाला है, और आज मार्केट में 6.5% का रेट चल रहा है, तो वो जब आप बॉन्ड आप मार्केट में बेचना चाहते हो तो उसके लिए मार्केट आपको प्रीमियम देता है। तो दिस इज अबाउट हाउ बॉन्ड मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, और ये प्रतीक कहना चाह रहे हैं। प्रतीक, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो इफ इट इज ओके आई विल क्विकली रन थ्रू द क्वेश्चंस जो Certainly. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर जिन्होंने क्वेश्चन पूछे प्लीज नोट करें, ये कॉल इज विद द फंड मैनेजर एंड द फंड हाउस। तो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, पेनी स्टॉक या स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक which is on PSU I can read out, that we will not be able to address। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो आप HDFC सिक्योरिटीज के RM से पूछ सकते हैं या HDFC सिक्योरिटीज की रिसर्च से पूछ सकते हैं, बट mutual funds team is restricted to talk about that, so we will not be able to answer that. Now coming to simple questions like Prateek, do we invest in REITs? REITs में invest कर रहे हैं हमारे fund में, और या is there provision to invest? Maybe you are not investing now. Right. So we have the provision वो SID में enabled है. For now, Okay. we've not invested in REITs, but REITs are looking interesting. So दो तीन जो listed REITs हैं, those do represent some interesting opportunity. What was happening in REITs is कि वहाँ पे क्या है, occupancy vacancy जो rates है वो बढ़ रहे थे। क्यों हो क्या रहा था कि कोविड के टाइम पे जो हमारे आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे, मोस्ट आईटी कंपनीज वर एक्चुअली डूइंग दिस हाइब्रिड मॉडल, राइट, वेयर आपको 2 दिन हफ्ते में घर से काम करना है, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया हुआ था जी। तो जो ऑफिस स्पेस की जरूरत थी, अगर आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं तो आपको ऑफिस स्पेस की एक्चुअली एट अ टाइम शायद सिर्फ 70 और 80 सीट्स की जरूरत थी। तो वहां पे क्या है कि ऑक्यूपेंसी रेट कम होते जा रहे थे रीट्स में, विच ऑब्वियसली वाज अ प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी ये एसईजेड रिलेटेड रेगुलेशंस की, कि होता क्या था कि अगर आपका गवर्नमेंट ने ये 15-20 साल पहले पॉलिसी बनाई थी कि अगर ये एक बिल्डिंग है, ये एक पूरी एसईजी नोटिफाइड बिल्डिंग है, राइट, तो इसमें जो भी है आपको टैक्स ब्रेक्स और ये सब मिलेंगे। वो उन सब क्लॉजेस में क्या था, एक सनसेट क्लॉज था कि आपको ये 15 साल तक आपको टैक्स ऑफ्स मिलेंगे, करेक्ट। तो होता क्या था कि अगर आपके वो टैक्स ऑफ्स खत्म हो गए, वो सनसेट क्लॉज आ गया, तो पूरी बिल्डिंग एक नॉन एसईजेड बिल्डिंग बन जाती थी। अभी वेरी रिसेंटली रेगुलेशन आया जिसमें आप एक्चुअली फ्लोर वाइज उसको वो कर सकते हैं कि अगर मेरी 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माले का ऑफिस स्पेस है, तो मेरा दूसरा और तीसरा माला जो है वो एसईजेड रहेगा, बाकी चौथे और पांचवा माला एसईजेड नहीं रहेगा। दीज आर न्यू रेगुलेशंस दैट हैव कम अप। तो जो भी ओवरहैंग था अराउंड एसईजेड्स, दैट इज सॉर्ट ऑफ रिसीडिंग, व्हिच मेक्स देम एन इंटरेस्टिंग प्ले। द सेकंड बिट इज अगेन, बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने हाइब्रिड मॉडल अपनाया था, दे आर एक्चुअली गोइंग बैक। सो अगर कुछ आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनने वो हाइब्रिड मॉडल स्केल डाउन किया है कि पहले बोलते थे कि 2 हफ्ता ऑफिस में आओ, आजकल बोल रहे हैं कि कम से कम 4 दिन हफ्ते में आपको ऑफिस आना है, राइट। So that occupancy level, which is falling consistently, that has started to now taper off, and agar if there are more jobs that are outsourced to India, that would do well. So I think REITs do represent a good opportunity, probably at a cyclical bottom here. So those are interesting things. We've not certainly added them so far because अभी तक opportunities थी, हमको लग रहा था कि long duration bonds में अभी ज्यादा पैसा बनेगा। Once that rally plays Right. out, then I think we REITs on a like-to-like basis become a better play. Until that happens, we think there's more money to be made in the long duration bonds. So तब तक हम यहाँ रहेंगे। ये bonds की rally खत्म होने के बाद शायद हम REITs पे भी investment start करें। Right. As the questions are coming, there are certain investors जिन्होंने म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। I'll answer. I think there are certain notion कि म्यूचुअल फंड खाली 10-12% रिटर्न देता है, so please
for all investors, there are a lot of websites including HDFC Securities. You can go there, find there are a lot of funds which have given performance. Past performance has been between 12 to 60%. So ऐसा नहीं है कि फंड म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स कम आता है. यस, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस डाइवर्सिफाइड उनके पूरे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है. उसमें कई स्टॉक हो सकता है बहुत अच्छा करे, कई स्टॉक हो सकता है कम अच्छा करे, बट 10-12% का रिटर्न आई थिंक ये मिसनॉर्मर है. शायद आपको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन दी है. इनफैक्ट देयर इज वन इन्वेस्टर जिन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मैंने अगर 15,000 रुपए की SIP करी हुई है 25 साल के लिए, तो simple sir answer है ये there are a lot of calculators which are available on HDFC Securities website, our Invest Right app also. You can keep on checking this permutation combination कितने परसेंट पे कैसे बन सकते हैं. One question, Prateek, which is coming multiple time is about real estate. So एक real estate के ऊपर as a sector, what is your house view, not on specific stock? Second, is this with the interest rate expected to go down, real estate या finance या इस sector में शायद तेजी आ सकती है क्या? So broadly on a sectoral view rather than going stock specific, अगर आप बता सके तो. जी बिल्कुल. Please. So real estate again is a sector that we have recently become more more bullish on. And there are several reasons as to why that is the case. अगर आप globally pan India अगर आप देखें तो कुछ pockets of Noida को छोड़ के सब जगह inventory levels are actually coming down. Also what has happened कि पिछले 10 साल में affordability has increased, which means कि real estate prices themselves have not kept pace with salaries, right? So on the margin, homes have become more affordable. Having said that, there are some pockets, especially in Gurgaon, where we do see a lot of frauds. So Gurgaon-based companies, we think वहाँ पे बहुत ज़्यादा upside नहीं है because the market is very, very frothy. And to make incremental returns from there, I don't think makes a lot of sense. Bombay as a market hasn't seen the same kind of action than like Gurgaon has seen or Bangalore has seen. Bangalore has certainly a lot of tailwinds for it. Bangalore एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा jobs create हो रहे हैं. So end demand perspective से actually Bangalore is a space. Bangalore-based companies are what we like the most. That is one place where the rally has been driven by end demand. GCC अगर आप देखें global capacity centers, a lot of outsourcing work जो वहाँ पे बहुत सारे कारणों की वजह से outsource हो रहा है. Bangalore and Hyderabad are two places where a lot of this work is coming, a lot of jobs are being created. So those are the two markets that we like. Not so much Mumbai, and Gurgaon was doing okay, but now it has become frothy. So those are the names that I would probably look for. So far, we've not added them. Yes. The issue also is that a lot of these real estate companies in the past cycle were marred with a lot of corporate governance issues. So ये अगर अलग layer of problem आती है as a fund manager कि क्या हम इन promoters को trust कर सकते हैं इस cycle में जिन्होंने पिछले cycle में बहुत लोगों का पैसा गवाया है. So that is also something that we grapple with a lot. But having said that, like I said, Bangalore-based companies are what we're looking for, at least evaluating those. Thanks. There are still one or two questions we will take before we just conclude. So I think there are 1-2 questions which are related to right time to switch between asset classes and all. So this is only to all the investors. Think this movement from one asset about it, please class to another. Simple reason उसका यही है कि आप जब खुद से करते हैं तो there is lot of study required where you are entering, lot of taxes implication and cost goes in when you shift funds in terms of
and investment cost goes up. So it's good to give your funds to a fund manager who will do this basis his knowledge, understanding, and वो जो भी expense होता है that doesn't comes to you, overall expense which is already stated in the TER, which is the total expense of the fund. That is the expense you have to pay. उसके अंदर का you don't pay any additional gains और कि आपने equity में मान लीजिए 10% और डेट मार्केट में 10% पार्टिसिपेट किया. Specific question on specific asset class which are coming on the group I will just ignore, but market is also looking very attractive. Not saying that gold doesn't look attractive. Gold, as you see, once equity or interest rate goes down, especially correlation with the Fed is whenever their interest rate goes down, the gold goes up. So gold also is a very good asset class to be to participate in. इन सारे एसेट क्लासेस का मिश्रण अगर आपको एक साथ ही मिल रहा है तो आई विल से कि आप एक एक करके क्यों उठाएंगे, बिकॉज सबका अपना अपना टैक्स एंगल है, सबका अपना अपना कॉस्ट है और सबका अपना अपना ड्यूरेशन है कब तक आपको उसमें रखना चाहिए. तो इट्स बेटर टू गेट दैट प्रोफेशनली मैनेज्ड. And thanks all the investors who have joined in. I know we have very limited time. The DSP multi-asset allocation fund started almost 3-4 months back. It is already nearing 10% in terms of performance, and credit goes to Prateek and his team, how beautifully they are managing it. All those people who have invested, they can definitely look forward to add more, or who have not invested can invest more, because as a strategy, this is so like 3-4 months is a very short time to say it is it's a great strategy for long term, but definitely the green shoots are there कि अगर properly manage हो रहा है तो performance अच्छी आ रही है. And the portfolio is also available. आप लोग चाहें तो उसका portfolio भी देख सकते हैं then HDFC securities website or DSP website. So we will close for all the investors who have joined. Use this call. All the if you know more, आप अपने relationship manager से या you can directly approach us. Very close comment, Prateek, or we end this call. Stay invested. Keep your SIPs on. This is India's decade, but to play it without volatility, use multi-asset funds. That is the way to go. Thanks, Prateek. Thanks all investors for taking out time. Thank you for joining. Thank all the investors joining this call. Thanks everyone. Right. Thank you, Prateek. Thanks.